Okay, so we're on our way with the Super Sixes challenge. I hope everyone in the audience is ready to catch a few high balls. Well, it's two teams. Both teams have sent 3 players out. Objective's pretty simple. Just belt the ball hard. And they've got somewhere to go, Gaurav, really do, because there's 2 guys who are sitting on 99 meters at the moment. Andre Russell from the Delhi Daredevils, from Jamaican boy, hit the ball 99 meters, and Luke Wright, the Englishman from the Pune Warriors, India, they level pegging. But I've got a sneaky feeling tonight it's going to go 100 meters. You think it's going to go 100 meters today? It is. It's a tough one with a little orange ball. It's lighter. It's got dimples on it. Doesn't travel as far as the cricket ball. But we've got some big waves here today. Yeah, we do. And some of them are in form there. They're in unfair advantage, isn't it, for Dwayne Smith? Well, he's going to go last, so he has got an unfair advantage, but he only hit 4s at the back end to win the game. These guys have got to hit it off the ground. Just 4s. We're going to have 6s here. So if everybody in the crowd is ready to catch a few high balls, I think from the Chennai Super Kings, we have Scotty Styris going first. He's got a lot of that. He's gone straight. Similar to Luke Wright. Has he hit it as far? 89! He's got this. This is big. This is the number. Oh my word, we may have a winner. Mumbai, do you think this is 100 meters? Comfortably, comfortably. Oh. Good swing. Over mid-wicket he goes. It's not going to be long enough, but it is big. My guess is 93. Now the first tier there is definitely in the 90s. Oh my word, this is it! I'm backing this one. He got the cheer. It's right up there. This might be the number. I know that Virat Kohli is watching this one. Yeah, he's not playing, but let's see if Albi can do the same to the bowling machine. This is what he did down at the Chinnaswamy. Oh, beauty! Here it is. Here's your winner. Here's your winner. He knows straight away. Oh! There it is. Come on, Mumbai. Let's show some love to Dwayne Smith this evening. That's clean. Let me tell you, that's got a real chance. Oh, that has got a real chance. Let's put it up on the big screen. Oh! So the record 105 to Albi Morkel for 105. Well played, Albi Morkel. Big round of applause to Albi Morkel, ladies and gentlemen. Well, thank you so much, HD. From HD and from me, Gaurav Kapoor. It's goodbye. We'll see you on another Super Sixes challenge. अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन तमाम हाजरीन को मिर्ज़ा इकबाल बेग की तरफ से बहुत ही बड़ा वाला सलाम। जी हाँ, आज के हमारे जो मेहमान हैं उनकी तारीफ मैं जितनी करूं वो कम है, क्योंकि ये एक दंदान साज फैमिली से इनका ताल्लुक है और दांतों की जोड़ी ये और ये इनके जो भाई हैं जब साथ ग्राउंड में होते हैं तो बड़ी एक वहाँ पे एक खौफनाक सी सिचुएशन होती है, क्योंकि ये एक काफ़ी खौफनाक हथियारों से लेस होते हैं। हर वक्त 24 घंटे इनके पास वो हथियार मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अकमल फैमिली, दंदान साज फैमिली से ताल्लुक मंजले बेटे अकमल साहब के और कामरान अकमल के छोटे भाई उमर अकमल की। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा अंकल। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा अंकल। बहुत चहक रहे हैं उमर। अच्छा, पहला सवाल आज आपसे मैं पूछूंगा कि आपने जो है वो शाहिद खान आफरीदी की कैप्टनसी में भी आप खेले, उसके बाद आप मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में भी आप खेले, तो आपको एज अ प्लेयर क्या फर्क महसूस हुआ? देखिए मिर्जा भाई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या मिसबाह की कप्तानी हो। हमें अपने काम से काम है, हम अपने काम निकालते हैं और जो हमारा फोकस है, जैसे भाईजान ने कहा है हम वैसा ही करते हैं। अच्छा, सीधा सीधा सब किसी में पे जवाब। इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे संगकारा की कैप्टनसी हो, मिसबाह उल हक की कैप्टनसी हो या फिर कोई भी दुनिया क्रिकेट का कोई भी कैप्टन, आपको अपने काम से काम और आपके भाई को भी काम से काम। यकीनन हमें मेरे तमाम जो शायकीन है वो इस वक्त इस बात को समझ चुके
कहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल अच्छा, आपसे एक और सवाल, नौजवान खिलाड़ी हैं, आपके अंदर जो है वो नया खून है और काफी लश्कारे मारता हुआ खून है। मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस भी देखी जिसमें आप काफी नाचे हैं, बहरहाल उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अबू धाबी में, दुबई के अंदर अभी जो क्रिकेट मैच हुआ, तो आपको दुबई में एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरे भाई, मेरे पसंदीदा सवाल आपने कर लिया मुझसे। मैं दुबई एक दफा गया था, मैं और कमरान भाई ना दोनों साथ जा रहे थे। वहां से सामने से शेख आ रहा था, शेख से उनकी वो शेख जो अरबी होते हैं, हाँ, वो लंबा चौड़ा सा मन्नान जिन जैसा। हम तो डर गए थे, उससे टक्कर क्या हो गई कमरान भाई की। अच्छा, वो समझा मगालते में कि मेरा पर्स मार लिया। अच्छा, कमरान भाई ने, जैसे अरबी ने समझा कि कामरान अकबर ने उसका बटुआ मारा, पर्स मार लिया, तो उसने जो है वो बदतमीजी शुरू कर दी। देखें, अगर मिर्जा भाई अगर वो मेरे को कुछ कह देता ना, मुझसे बदतमीजी कर लेता, मैं सह लेता। मैं जब उसने कमरान भाई के ऊपर हमला किया तो मेरे दांतों को जो जोश आया, जो गुस्सा आया, मैंने आओ देखा ना ताओ, और उसको ऐसा मैंने दंडियां बट के उसको हम दोनों भाइयों ने भगा के रख दिया वहां पे। मैंने बीच में टेबल भी रखवाई, पता नहीं कब आपका मूड खराब हो जाए और आप मुझ पे भी हमला करते। बहरहाल अच्छा, इनके बारे में एक और बात मैं आपको बताता चलूं। जब दुबई के लिए ये रवाना हो रहे थे तो वो जो सेंसर मशीन होती है, जब उमर अकमल को उसके दरमियान से गुजारा गया तो मशीन ने जोर जोर से चीखें मारना शुरू की, टांट टांट दांत दांत, पता नहीं कुछ इस तरह की आवाजें आने लगी। और दुबई पे जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई। उन्होंने समझा कि कोई खतरनाक असलहा इनके पास मौजूद है। बाद में इन्होंने वो सर्टिफिकेट दिखाया। नहीं, वो पता है मिर्जा भाई क्या हुआ था, वो मैंने अपने केसिंग लगाई थी दांतों की स्टील की ना। अच्छा, तो उसकी वजह से जो है वो पकड़े गए हम लोग, तो उस वजह से उसने मैं समझता हूँ AK-47 से कम के दांत नहीं है आपके, किसी भी वक्त काम आ सकते हैं इंशाल्लाह। खुदा न ख्वास्ता कभी अगर जंग हुई तो उसमें भी आपके दांत काफी कारआमद साबित हो सकते हैं। कोई ऐसा मिर्जा भाई मुल्क पे वक्त आता है तो मैं और मेरा भाई, बल्कि तीनों भाई अपने भाग जाएंगे। अपने दांतों के साथ जो है वो हाजिर हो जाएंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। मैंने ऐसी आपकी चुटकी ली, मैंने कहा भाग जाएंगे, बहरहाल ये सच भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अपने भाई की जुदाई में कितना कितना गमगीन हैं आप, जरा हमारे शायकीन को बताइए कि कामरान अकमल जो कि अपने करतूतों की वजह से आज बाहर है, तो उनकी जुदाई में कितना गमगीन है। भाई तो भाई है, देखें, जैसे एक से भले दो, ऐसे हम समझते हैं अपने हाथ में कि 32 से भले 64। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर उसको राल मिल के हम लोग खेल लेते तो याद तो बड़ी आती है, लेकिन आप दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें बचा दे। पिछली दफा भी बचते बचते वो आए हैं, इस बार भी बच जाए। शक शुक तो बड़ा जा रहा है, लेकिन हमारी दुआ है कि वो फंसे ना। मिर्जा भाई दुआ करें, वरना मैं चक काट लूंगा आपको। मैं चक काट लूंगा। इधर दुआ नहीं करते ना। बचाओ मुझे। कोई